Good morning everyone and welcome to the class. Today we will start, it's not a complete chapter which you are supposed to study for your examination, because according to revised syllabus this chapter is not there in your syllabus, the chapter Constitution as a living document. But what is done that you have to read some pages from this chapter. ठीक है, कुछ कंटेंट है इस चैप्टर के जो आपके सिलेबस में है, रिवाइज सिलेबस में. द होल चैप्टर इज नॉट देयर, बट I have taught this chapter earlier also, and at present I will be teaching you in such a manner कि everything should be clear to you, but my more focus will be on those content which are there in your syllabus. Okay, so accordingly I will focus more on those content, but the whole chapter will be discussed with you. So in this context, first of all, you must know, you all are knowing what is a constitution. Constitution is a rule book, and a type of rule book in which all the rules are given. Every rule regarding the governance of the country is given, and at present time it happens कि constitution is made by a constituent assembly or an organization which is called constituent assembly, which is responsible for making the constitution. In almost all the countries the same process is adopted, but there are some countries where we find that there is no written constitution, like the constitution of Britain. The constitution of Britain, that is United Kingdom, जिसको हम United Kingdom कहेंगे, United Kingdom का जो constitution है, that is not in a written form. It means that it is not in the form of a book. ठीक है, it does not mean that nothing is no written content is available regarding the constitution of the Britain. Some content is there which is present in the written form. Yes, it is there, but the whole constitution cannot be found at one place in a written form. That is unwritten constitution. और इस तरह के जो constitution चाहे written हो चाहे unwritten हो, what we find, what to make the constitution relevant, what make the constitution meaningful is that the constitution must be adaptable to the changing situation. Because what happens that constitution is made at a particular point of time, ठीक है, and after that time what happens, so many changes occur in the political, social and economic system of the country, and accordingly there is need to change the constitution, because every time we see new circumstances are coming, and according to these new circumstances we need to change the constitution, isn't it? जैसे circumstances होते हैं उसके accordingly ये बहुत important है कि constitution बदले. अगर if suppose there is no way to change the constitution according to the changing situation, what will happen? That there will be need of a new constitution, isn't it? Situations बदल गए, circumstances बदल गई. According to change situation, according to change circumstances, there is need of a new constitution. But according to change circumstances, there is need to change the constitution, but there is no provision for changing the constitution. Nothing is written in the constitution regarding the process of changing the constitution. Then that constitution will become irrelevant after some time, isn't it? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन के रेलिवेंस को बनाए रखने के लिए. इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन रेलिवेंट, इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगफुल, in order to make the constitution working, it is very much important that there must be provision for changing the constitution.
अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की प्रोविज़न नहीं होगा तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ेगी. And if we see in case of our country, so more than we can say yes, it's 70 years, है ना. 70 years जो है वो पास हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से. दिस इज 70th year, isn't it? And we find that the constitution is still relevant, the constitution is still meaningful, and not only this, the people gave the same respect to the constitution which was given to it in the initial years. Even after passing of 70 years, we find the constitution equally meaningful, equally relevant, and that is the reason people give it so much respect and a very high position. So what is this? Why our constitution is relevant? Why we give respect to the constitution so much so that there is no reduction in the respect of the people towards the constitution? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे द रीज़न इज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. इट्स नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट पेपर, बहुत सारे कागजात, पेपर्स. पेपर क्या होता है? पेपर एक नॉन लिविंग थिंग होता है, isn't it? और नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच के जब हम डिफरेंसेस को देखते थे, ईवीएस में हमने पढ़ा था छोटे में, what is the difference between a living thing and non-living thing. One of the most important difference between these two is that the non-living thing never respond to the environment and the living thing respond to the environment. जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो कभी भी अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से कोई उसके रिस्पॉन्स नहीं देती है. अगर हम एक ये हमारे स्पेक्स का बॉक्स है, अगर इसको हम थप्पड़ मारेंगे तो क्या ये रिएक्ट करेगा? ये कोई रिस्पॉन्स देगा? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, इजंट इट? अब अगर हमें कोई थप्पड़ मारेगा, हम हटाएंगे अपने, जैसे ही हमें लगेगा कि कोई थप्पड़ मारने वाला, हम अपने गाल को हटाते हैं. दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना. यही कोई भी चीज़ छूने जा रहे, गर्म लगा, हम तुरंत हटाते हैं. दिस इज द रिस्पॉन्स. तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स आर एनवायरनमेंट. जो भी जैसा हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम उसको रिएक्ट करते हैं तुरंत. दिस इज द फीचर ऑफ लिविंग थिंग. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिविंग और डॉक्यूमेंट हो गया? जब ये डॉक्यूमेंट है तो ये लिविंग कैसे हो सकता है? ये तो एक बुक है, और बुक जो होती है वो तो नॉन लिविंग थिंग होती है. हाउ कैन इट बी अ लिविंग और डॉक्यूमेंट? It is living document because our constitution respond to the changing circumstances. Our constitution respond to the changing situations. जैसे जैसे समय बदल रहा है, नीड बदल रही है, सिचुएशंस बदल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल रहा है. इट इज नॉट अ स्टैटिक थिंग, इट्स अ डायनामिक थिंग. It keeps changing according to the circumstances, according to the demand, according to the need of the time. It keeps changing. ये evolve हो रहा है. Evolution. Our constitution is evolving. How is it evolving? It is evolving by responding to the new circumstances. जो भी सर्कमस्टांसेस पैदा हो रहे हैं, टुवर्ड्स दैट सर्कमस्टांसेस इट इज रिस्पॉन्डिंग. एंड इस रिस्पॉन्स के कारण ही इसका इवोल्यूशन हो रहा है. अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इवॉल्व नहीं होता, और इवॉल्व नहीं होता तो इसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं कहते. तो इट कीप्स इवॉल्विंग. हर समय वो आगे बढ़ रहा है. बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ रही हैं, कुछ चीज़ें हट रही हैं, तो ये हमेशा इवॉल्व करता जा रहा है. एंड इवोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम भी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर भी इवोल्यूशन होता है.
बहुत सारी मेंटल इवोल्यूशन कहेंगे, फिजिकल इवोल्यूशन होता है। तो ये लिविंग बीइंग का एक क्वालिटी है, और इस क्वालिटी को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हैं। ये इवॉल्व हो रही है क्योंकि ये जो भी सर्कमस्टांसेस हो रही है, टुवर्ड्स दैट सर्कमस्टांसेस इट इज रिस्पॉन्डिंग, दैट इज द मेन थिंग। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हाउ डज इट रिस्पॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अमेंडमेंट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्रोसेस होता है उसी को हम अमेंडमेंट कहते हैं, या फिर व्हेन वी से टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन in the language of political science you should say to amend the constitution. Okay, instead of change, in political science we use the term amend. ठीक है, and this process is known as amendment. And what we find that in our constitution there is article 368. Okay, article Article 368 is there, and this article provides for amendment in the constitution. How the constitution will be amended, it is given in this article. And what is the article? The article says that Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article. So process is given in the article to amend the constitution. And what do you mean by the amendment in the constitution? It means that first of all the power of amending the constitution is given to the parliament. Okay, that is the national legislature. Okay, and this power of parliament is known as constituent power. This power of parliament is known as constituent power. Okay, so you must know the term constituent power. There may be question like this, describe the constituent power of the parliament. It means the power to amend the constitution which is given to the parliament. This you will have to explain. Okay, तो constituent power of the parliament जो है वो उसके अंदर उसको बदल सकती है, क्या कर सकती है through amendment. What the parliament can do? First, it can add something. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं उनमें कुछ नई चीज़ को ये चाहे तो ऐड कर सकती है, या फिर इट कैन ऑल्सो मेक सम वेरिएशन. व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? कुछ चेंजेस लाना, जो जैसा है उसको थोड़ा सा बदल दिया गया. ठीक है, उसमें चेंजेस ले आए गए. फिर या फिर उसको रिपेल भी कर सकती. तो अमेंडमेंट का जो मतलब हो रहा है वो यहाँ पे ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. एक तो आ रहा है कि एडिशन हो रहा है, कुछ नई चीज़ जुड़ रही है, या फिर दूसरा हो रहा है कि उसमें कुछ वेरिएशन हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एंड तीसरा जो हो रहा है वो है कि रिपेल हो रहा है, मतलब कि उसको खत्म कर दिया जा रहा है. अगर एक एग्जांपल्स इसको हम समझ लें, एडिशन जैसे, तो एडिशन में हमने क्या देखा, अगर अपने पीछे के जो भी हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें हमने देखा था ना कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो मेंशन ऑफ राइट टू एजुकेशन, है ना, बट दिस राइट टू एजुकेशन वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अमेंडमेंट. तो दैट इज एडिशन, कि एक नई चीज को ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट. ओके, देन वेरिएशन का मतलब जो चीजें थी उसमें कुछ चेंजेस ले आए गए. ठीक है, जैसे कि अगर इसमें हम लोग बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, इट इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स. लाइक 352 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 352, उसमें कुछ वेरिएशंस लाए गए थ्रू अमेंडमेंट. वो वेरिएशन क्या था, लाइक 352 इज रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी, जो कि प्रेसिडेंट का पावर है ना. तो अब प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज करते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है. तो उसकी जो क्राइटेरिया था ना, किस बेसिस पे द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, उस बेसिस में चेंज लाया गया. जैसे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस द प्रेसिडेंट कैन declare emergency, national emergency under Article 352. But by amending the constitution, what is done that instead of internal
disturbance. There should be armed rebellion. If there is armed rebellion, then only the president can declare this national emergency under Article 352. तो ये क्या है? This is an example of variation. It is only an example, only to make you understand I am telling all these things. Okay? तो एडिशन का मतलब कुछ नई चीज ऐड हो रही है, वेरिएशन का मतलब हम उसमें चेंजेस ला रहे हैं, रिपील का मतलब हम उसको खत्म कर रहे हैं. लाइक फंडामेंटल राइट में वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज वी हैव सीन इज राइट टू property. Now this right to property has been repealed. इसको खत्म कर दिया गया. It is no more a fundamental right. Now it is one of our legal rights. So this is the repeal. तो ये प्रोसेस होता है अमेंडमेंट का. अमेंडमेंट के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, या तो एडिशन होगा, या वेरिएशन होगा, या रिपील होगा. ओके तो अब हम ये देखेंगे कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है पार्लियामेंट को. पार्लियामेंट हैज टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज गिवन इन दिस आर्टिकल 368 ओनली. ठीक है, ये जो हम आर्टिकल 368 की हमने बात की, इसी में ये प्रोसेस दिया हुआ है. तो यहाँ पर वन मोर थिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारे अलग अलग बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, एक जो बेसिस है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का प्रोसेस है, ऑन दैट बेसिस द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और इट कैन बी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल और रिजिड का क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबल जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो आसानी से चेंज हो जाए, है ना, जैसी जरूरत है, जैसे इलास्टिक होती है, जितना भी उसको फैलाएं हम फैला सकते हैं. इतनी छोटी सी होती है, चाहे तो हम उसको यहाँ तक फैला सकते हैं. दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, इसका क्या मतलब है कि वॉट एवर whenever there is need to change the constitution, whenever there is need to amend the constitution, it can be amended very easily. Then we can say that the constitution is flexible. Okay, and now come the next thing, rigidity. What do you mean by rigid constitution? Rigid constitution is that constitution in which you cannot change, you cannot amend the constitution, though the situations are such that there is ultimate need to change the constitution, but the process of amending the constitution is so difficult that you cannot change it easily. ठीक है, तो ये दोनों दो हम कह सकते हैं दो एक्सट्रीम है. एक हो गया एकदम फ्लेक्सिबल है, मतलब जैसे मन जितना, जब भी कोई भी नई सिचुएशन आ रही है आप एकदम आराम से किसी भी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट कर सकते हैं. दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी. रिजिडिटी का चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, वो जो प्रोसेस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अमेंड करने का, द प्रोसेस इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इट इज सो difficult that it becomes nearly impossible to change the constitution. So what we find that these two conditions both are not suitable. If we want that the constitution should be working, the constitution should be relevant, in that situation what we find that both these flexible and rigid constitution both becomes मीनिंगलेस. बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जब भी जैसी भी नीड हो रही है उसके बदलने का प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है, इजीली उसको चेंज किया जा सकता है. बिल्कुल, तो क्या होगा, चेंज आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और चेंज होते होते ये कंडीशन हो जाएगी कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द होल कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंज. यू विल फाइंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद इन अ पीरियड ऑफ 10 or 15 years. This is the result of flexible constitution. If any part of the constitution can be amended by a very simple process, then in that case what will happen that we will see a completely new constitution after 10 to 15 years. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हो गया तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. जिस इंटेंशन के साथ, जिस फिलॉसफी के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो सारे खत्म हो गए, उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि सारी चीज़ों को बदल दिया गया. जो बेसिक चीज़ें थी, जो प्रीएम्बल में चीज़ें थी, एवरीथिंग इज चेंज बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन अ वेरी ईजी मैनर. So this is the drawback of a flexible constitution. And if we see the rigid constitution, what we find that suppose some situation is there that there is urgent need to change the constitution, but we cannot amend the constitution because
whatever process is given in the constitution, the process is so difficult, it is so complicated that it cannot be changed. वो प्रोसेस का जो दिया हुआ है, जो रूल्स दिए हुए हैं, उसको हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे, तो वो चेंज हो ही नहीं पाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सो रिजिड दैट it does not change according to the need of the time, according to the circumstances. So in that situation what will happen? We need a new constitution. ठीक है, तो ये चीज जो प्रॉब्लम आ रही है, ये दोनों में प्रॉब्लम है. रिजिड भी है तो भी दिक्कत आएगी, फ्लेक्सिबल भी है तो भी दिक्कत आएगी. तो रास्ता क्या है? व्हाट इज द मिड वे? मिड वे यही होगा कि न तो कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसके किसी भी पार्ट में कोई भी अमेंडमेंट इजीली लाया जा सके, और न ही कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रिजिड होना चाहिए कि उसमें सर्कमस्टांसेस ऐसी हो चुकी है कि चेंजेस लाना है लेकिन फिर भी हम उसमें चेंजेस नहीं ला पा रहे. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर प्रॉब्लम आती है. तो इसलिए इन दोनों के बीच का रास्ता जो होता है, दैट इज द बेस्ट वे, and that was adopted by our constitution makers. Our constitution makers were very much aware of the problem of being a rigid constitution or being a flexible constitution. That is why they adopted a midway between the rigid constitution and the flexible constitution. इन दोनों के बीच के midway को उन्होंने adopt किया. और ये midway क्या है? What is this midway? Midway का मतलब यही है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे पार्ट्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें अगर अमेंडमेंट लाना हो तो वो बिल्कुल सिंपल लॉ जैसे बनता है, एकदम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. ओके, कुछ पार्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ठीक है, जिन पार्ट्स में एकदम सिंपल लॉ मेकिंग से चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के. उनसे कोई हमारा जिसको हम कहेंगे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कनेक्टेड विद दोज प्रोविजंस. अब कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फिलॉसफीज हैं, वो जुड़ी हुई हैं. आई विल एक्सप्लेन इट. ठीक है, अब अभी एक हल्के में आपको समझ लेना है. तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे हमारी फिलॉसफी जुड़ी है, प्रिंसिपल्स जुड़ी हैं. तो इनमें अगर आपको अमेंडमेंट लाना है तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू गो बियॉन्ड दिस सिंपल लॉ मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, सिंपल लॉ मेकिंग प्रोसेस से आगे जाना होगा. पार्लियामेंट ही इन्वॉल्व होगी, बट उसमें जैसे सिंपल मेजोरिटी के साथ साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग का भी वो अभी मैं बताऊंगी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए. और थर्ड एक और प्रोसेस अपनाया गया कि जिसमें कि सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं अमेंडमेंट कर सकती है, बल्कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें अगर अमेंडमेंट लाना हो तो इन दैट सिचुएशन द स्टेट लेजिस्लेचर्स विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट. ठीक है, तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बैलेंस बना के चला कि न तो रिजिड रखना है न फ्लेक्सिबल रखना है, बल्कि दोनों के बीच के कंडीशन को हमने अडॉप्ट किया. एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं. तो अभी हम लोग फिलहाल इन तीनों प्रोसेस पे ही फोकस करेंगे कि ये कौन से 3 प्रोसेस हैं जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है. ओके, सो द फर्स्ट प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल majority of both the houses of the parliament. And what we find कि जो simple majority है both the houses of the parliament, इसमें simple majority का क्या मतलब होता है? Simple majority का मतलब हमेशा याद रखना है 51%. If total number of members are 100, then the resolution must be passed by at least 51 members. It means 1 more than half. पहले हाफ कर दीजिए टोटल मेंबरशिप को, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दीजिए. दिस इज 51%. ठीक है, तो 51% लोगों का जब 51% ऑफ द मेंबर्स जब कहेंगे कि हाँ इसको पास होना चाहिए, तब वो पास हो जाएगी. जस्ट लाइक सिंपल लॉ मेकिंग, हमने सिंपल लॉ मेकिंग को पढ़ा हुआ है ना. व्हेन वी डिस्कस लेजिस्लेचर वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, हाउ लॉज आर इनैक्टेड.
तो इन द सिमिलर वे दीज अमेंडमेंट आर डन। ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें अगर अमेंडमेंट लाना हो तो वो बस सिंपल लॉ मेकिंग प्रोसेस से ही पार्लियामेंट उसको अमेंडमेंट ला सकती है। देयर इज नो स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी नया स्पेशल प्रोसीजर नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल जैसे ऑर्डिनरी लॉ बनते हैं वैसे ही अमेंडमेंट भी हो जाता है। ठीक है, और ये जो पार्ट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नेचर बना दे रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। फ्लेक्सिबल नेचर क्यों बन जा रहा है, क्योंकि जैसे लॉ बनते हैं वैसे ही आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में वो आ सकता है ना। बिल कैन बी स्टार्टेड, बिल अमेंडमेंट बिल कैन बी स्टार्टेड in any house of the parliament, and when it passes from one house by simple majority, then it reaches to the second house, and the second house also passes it by simple majority, then it reaches to the president, and after the consent of the president the amendment bill is passed, or accordingly the constitution is amended। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि ये प्रोसेस हमारा आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। एंड देयर आर मेनी प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर मेनी आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन बी मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट इन दिस सिंपल मैनर। ओके, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 को हम इसी तरह से आर्टिकल 2 में कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है में बाय लॉ, यहाँ पर ये चीज याद रखना जरूरी है कि जब हम सिंपल मेजॉरिटी वाली बात कर रहे हैं, जो पहला प्रोसेस है अमेंडमेंट का, उसको क्या कहा जाता है, बाय लॉ। मतलब you can amend the constitution simply by following the method of this law making, that is by law। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 2 के वर्ड्स को आप पढ़ेंगे तो इट इज रिटन दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट्स। नए स्टेट्स को एडमिट करना है अगर यूनियन में, इंडियन यूनियन है, इंडियन यूनियन में अगर न्यू स्टेट्स को एडमिट करना है, सो इन दैट सिचुएशन द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडमिट द न्यू स्टेट्स बाय लॉ ओनली। मतलब देयर इज नो नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली बाय सिंपल लॉ मेकिंग प्रोसेस दे कैन बी एडमिटेड। ओके, एंड नाउ वी सी आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज करना है तो उसके लिए भी पार्लियामेंट विल फॉलो द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज कॉल्ड बाय लॉ। सो whenever you see this term by law, it means that the simple law making process will be followed in order to amend the constitution। okay, so ये हो गया हमारा पहला तरीका अमेंडमेंट करने का। अब बाकी के अमेंडमेंट के तरीके क्या हैं, ये भी आर्टिकल 368 में दिया हुआ है कि किस तरह से अमेंडमेंट करना है अदर पार्ट्स को। अदर पार्ट्स को अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए 2 मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है, दिस इज सिंपल लॉ मेकिंग प्रोसेस, है ना। इसके अलावा जो अब हम सेकंड वाला देख रहे हैं वो क्या है, व्हाट इज दैट, द सेकंड इज सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट प्लस, ये तो चाहिए ही, सिंपल मेजॉरिटी आपको चाहिए दोनों हाउस का, प्लस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है कि इसके अंदर हम एक और चीज को ऐड कर दे रहे हैं। सो व्हाट इज दैट, सिंपल मेजॉरिटी 51% प्लस 2/3 मेजॉरिटी मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जो प्रेजेंट है मेंबर्स और जो वोट कर रहे हैं मेंबर्स, नॉट ओनली प्रेजेंट बट प्रेजेंट एंड वोटिंग, उन दोनों के 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये क्या हम देख रहे हैं, द प्रोसेस हैज बिकम कॉम्प्लेक्स। अब ये प्रोसेस जो है वो आसान नहीं रह गया अमेंडमेंट करने का, क्योंकि इसमें आपको दोनों चीज चाहिए। इसमें आपको सिंपल मेजॉरिटी भी चाहिए और स्पेशल, दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। ये पूरे जो प्रोसेस है इसको हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी
प्लस 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होता है. तो इट इज डन डेलिबरेटली, है ना. कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें आप सिंपल मेजॉरिटी से नहीं चेंजेस ला सकते. इफ यू वांट टू अमेंड दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू विल हैव टू फॉलो this special majority, that is simple majority plus 2/3 majority of present and voting. So we will continue with this, है ना. इसी को हम लोग और भी डिस्कस करेंगे और जितना डिस्कस करेंगे चीज़ें उतनी क्लियर होंगी. दो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे.